It is a great honor for me to introduce and welcome our guest of this beautiful evening, though he merely requires an introduction. We have with us Swami Nikleshwara Swaranandji, who currently heads Sri Ramakrishna Ashram, Rajkot, which is a branch center of Ramakrishna Mutt, Belur Mutt. Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission, the distinguished twin worldwide organization, were started by Swami Vivekanand around 120 years back, having their headquarters at Belur Mutt in Havra, West Bengal, and presently having 205 branches all over the world. He graduated in chemical engineering with honors in 1970 and post-graduated in industrial engineering in 1972. After working for a short period as a management consultant, he renounced the world and joined the Ramakrishna Order at its headquarters at Belur Mutt in 1976. He was then posted to Ranchi from 1977 to 1986, where he guided the rural and tribal development project Divyayan Krishi Vigyan Kendra, which later received the award of the best KVK in the country. Later, for 11 years, he edited the Gujarati monthly Sri Ramakrishna Jyot, published from Sri Ramakrishna Ashram, Rajkot. He was the head of the Porbandar Center for 8 years, from 1998 to 2005. He was instrumental in constructing 37 school buildings and 3 colonies in Porbandar district as part of earthquake rehabilitation project and in starting Vivekananda Institute of Values, Education and Culture, which was inaugurated by Dr. APJ Abdul Kalam, the then President of India, on January 12, 2006. From 2005 to 2017, he was the head of the Vadodara Center. He was instrumental in converting Dilaram Bungalow, sanctified by the state of Swami Vivekananda in 1892, with the befitting memorial of Swami Vivekananda, which was handed over by the then Chief Minister of Gujarat, Sri Narendra Modi, to Ramakrishna Mission on 2005. He tours extensively preaching the universal message of Vedanta in industrial houses, management institutions, and educational institutions. He has visited hundreds of educational institutions for preaching the character building message of Swami Vivekananda and has conducted training programs in many reputed companies. He has contributed a large number of articles on various topics in English, Hindi, and Gujarati journals. His book, Happiness and Peace in Everyday Life, Teacher as a Torchbearer of Change, and other books in English, Hindi, and Gujarati are quite popular. DVDs and CDs based on his lectures on various topics are in great demand and are available on YouTube. He has visited many countries for preaching the universal message of Vedanta and has addressed many interfaith conferences and international conferences. He was invited to offer special tribute to Swami Vivekananda during the celebration of Diwali and Hindu Heritage Month organized by the Parliament of the World's Religions at Toronto from 1st to 7th November 2018. I welcome you again, Swamiji. Swamiji, if I want to know what is the importance of faith in living a daring life, in living a life which is fulfilled, blissful, and uh, which requires no outside interference. Outside interferences cannot touch the person. So, what is the role of faith in everyday life? Faith is of utmost importance. There are 2 types of faith: faith in God and faith in yourself. Ultimately, both mean the same thing, but outwardly it appears so that some people may not believe in God. Doesn't matter. Swami Vivekananda says you must believe at least in yourself. If you believe in yourself, then also you will be able to overcome all the problems. Take the whole responsibility on your own shoulders. Take whole responsibility on your own shoulders. Okay, I can do the thing, I will do the thing, and I have got that self-confidence, and have faith in yourself. And so he says the old religion said, he is an atheist who does not believe in God.
The new religion says he is a theist who does not believe in himself. First believe in yourself and then believe in God. And not only that, he says, if you have faith in 330 millions of gods and goddesses of our country, and also have faith in other gods that you have recently imported from other countries, and if you do not have faith in yourself, you are an atheist. So have faith in yourself. The self-confidence is of utmost importance. Now, this self-confidence will come when we take the whole responsibility on our own shoulders, and then we have purification of our mind. The purer the mind, the greater will be the confidence, the faith that will come unto us. And Swamiji also had this problem. Swami Vivekananda himself had this problem. He did not, first of all, have faith in God, because when he was a student, he read many books of Western philosophers, Kant, Hegel, Spencer, John Stuart Mill. And after reading all these books, he became sort of a little agnostic. I may not say atheist, but agnostic. And so, but he wanted to know the truth. He very much wanted to know the truth. So he went on. Should I continue in English? Is it okay? Or I did fine. Yes. Is yes. it fine? Hindi- Okay. Yes, yes. So if you want, I can switch over to Hindi, whatever way you want. हिंदी में भी आप थोड़ा बोलते रहिए तो अच्छा रहेगा, हमारे ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट होंगे. ओके. तो स्वामी विवेकानंद जी जब उस समय विद्यार्थी अवस्था में थे, उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त. जी. तो ये विद्यार्थी जब अवस्था में थे तो उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ते थे. तो कांट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब की किताबों के पढ़ने के बाद एग्नोस्टिक हो गए, अग्नेयवादी हो गए. नास्तिक तो नहीं हुए, अग्नेयवादी हो गए. परंतु उनको भगवान का दर्शन करने की, सत्य का साक्षात्कार करने की बहुत व्याकुलता थी. तो इसलिए कोई भी संत आते कलकत्ता में, तो उस समय और कलकत्ता तो उस समय राजधानी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो कई लोग आते थे. उनको जाकर के उनके साथ उनको पूछते थे, एक ही प्रश्न पूछते थे, सर हैव यू सीन गॉड? आपने क्या ईश्वर को देखा है? क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं तो वकील का लड़का हूं. उनके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में प्लीडर थे. बोले मैं वकील का लड़का हूं, मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, उसके बिना मैं कोई केस नहीं लूंगा. नंबर एक. और नंबर दो, साइंस भी पढ़ते थे. उस समय के जमाने में साइंस आर्ट दोनों पढ़ा जाता था एक साथ. जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग वी आर ट्राइंग टू कंबाइन द टू, नॉट मेकिंग सेग्रीगेटेड watertight compartments. It's a very good new move which is already there in America and other countries, and which was already there with us at that time. Anyway, तो स्वामी जी ये प्रश्न पूछते थे, पर कहीं से उनको संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता था. फिर उन्होंने सुना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, उन्होंने जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उन्होंने सुना कि वो बहुत ध्यान करते हैं, गंगा में एक कैबिन में, जहाज में कैबिन में ध्यान करते हैं. तो एक बार वहां पहुंच गए, कैबिन में पहुंच गए तो देखा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ध्यान में मग्न हैं. जब उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने फिर कहा, महर्षि मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. आप तो दिन रात ध्यान करते हैं ईश्वर का, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने क्या ईश्वर को देखा है? थोड़ी देर तक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, बेटा तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर है, योगी के समान है. नरेंद्र नाथ बहुत निराश हो गए. यहां भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला. अरे मैं अपने आंखों की प्रशंसा नहीं चाहता, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए. यहां पर भी निराश. एक दिन वो कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे वो. उस दिन ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने वाले प्रोफेसर नदार आए नहीं, गैरहाजिर थे, अनुपस्थित थे. तो उनके बदले प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी वे स्वयं क्लास लेने के लिए आए. आजकल तो छुट्टी हो जाती, प्रोफेसर नहीं तो लोग बच्चों को मजा आ जाती, विद्यार्थियों को. उस समय ऐसा नहीं था. प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी ही हिमसेल्फ केम टू टेक द क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया. तो द फाइनल एक्सिट, वर्ड्सवर्थ की कविता, वो पढ़ा रहे थे. उसमें ऐसा वर्णन आता है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य देख करके समाधि अवस्था में चला जाता है, अति चेतना अवस्था में चला जाता है. तो सब विद्यार्थियों का, सर सचमुच में क्या पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति समाधि अवस्था में चला जाए, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाए?
तब प्रोफेसर विलियम एस्टे ने कहा, हाँ, ये संभव है। मैंने स्वयं एक मनुष्य को देखा है जिसको इस प्रकार से बारंबार समाधि की अवस्था होती है, और तुम जी। लोग यदि चाहो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वो मनुष्य कलकत्ता में रहता है। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर का मंदिर है, उस दक्षिणेश्वर के मंदिर के वो पुजारी है रामकृष्ण परमहंस, उनको समाधि की अवस्था बारंबार होती है। तब अच्छा स्वामी जी, नरेंद्र नाथ ने सोचा चलो ये बाबा जी को भी देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, चले गए वहां पर दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर जब गए तो रामकृष्ण परमहंस भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत जब कर रहे थे तो वो एक कोने में बैठ गए, थोड़ी देर तो बात सुन ली। फिर उन्होंने कहा, अच्छा बहुत आपने ईश्वर की बातें की, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला, हाँ बेटा, मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, फिर कहा, जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने कहा, यदि तुम चाहो तो तुम्हें भी उनके दर्शन करा सकता हूं, परंतु साधना करनी पड़ेगी। ये मानो इट्स साइंस ऑफ रिलीजन। साइंस कहता है H2+O2 इज इक्वल टू H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनेगा। अरे हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन गैस से कैसे पानी बनेगा? हम नहीं मानते। मानने का सवाल नहीं है, आप लेबोरेटरी में आइए, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस कीजिए, फिर यदि आपको पानी नहीं मिलता तब आप कहिए नहीं हम इसमें विश्वास नहीं करते। इसी प्रकार से रामकृष्ण देव ने कहा, मैंने देखा है, ईश्वर का दर्शन किया, तुम चाहो तो तुम्हें भी करा सकता हूँ, पर लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, साधना रूपी प्रयोगशाला में आना पड़ेगा। और नरेंद्र नाथ ने हाँ यस प्लीज स्वामी जी, अगर मैं अपने जो पहला मूल प्रश्न था कि फेथ की बात जब हम कर रहे थे, तो जो एक लोग बाग आज के टाइम में पर्टिकुलरली जो हमेशा दौड़ते रहते हैं खुशी की तरफ, जी 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 कि नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट की चैलेंज, उन्होंने खुद ने साधना की और काशीपुर उद्यान बाटी में उनको समाधि का दर्शन हुआ, ईश्वर का दर्शन हुआ। क्योंकि उनको स्वयं दर्शन हुआ था, इसलिए अपनी अनुभूति के बल पर शिकागो विश्व धर्म सभा में वो सब लोग को बोल सके थे, श्वेताश्वेतर उपनिषद का श्लोक उनको उद्धृत कर सके थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितः नय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिनको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं इसकी अनुभूति करने के बाद कहा था कि हाँ, इट इज पॉसिबल, बट वी हैव टू अंडरगो प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमको उसका दर्शन होगा। अब आप बोलिए आपका प्रश्न। जी, मेरा प्रश्न यही था, जो आज का सामान्य मनुष्य है, जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, वो लोग, एक आपने बुक्स भी लिखी है, लाइफ एंड हैप्पीनेस, एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे हैप्पीनेस, और जो एवरीडे हैप्पीनेस जो एक एल्यूसिव काइंड ऑफ थिंग है, जिसमें लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें यहाँ खुशी मिलेगी। आपने बहुत बार, मैंने आपके जो वक्तव्य सुने उसमें बताते हो कि कैसे एल्यूसिव हैप्पीनेस की तरफ लोग भागते रहते हैं। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा फेथ वाला जो फैक्टर है, ये क्या कुछ बचा सकता है लोगों को, जो एल्यूसिव हैप्पीनेस है, जिस जो ढूंढ रहे हैं रोज लेकिन मिलती नहीं? हाँ, मैं बताता हूँ उसके लिए मैं बताता हूँ। कई लोगों के लिए मन में प्रश्न होता है कि भाई ये ईश्वर का तो कोई हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसीलिए पॉल डेविस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, नाम सुना होगा। पॉल डेविस ने किताब लिखी, किताब का नाम है द माइंड ऑफ गॉड, और उसमें उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द माइंड ऑफ गॉड, तो जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान तो इन्फिनिट है, चलो इन्फिनिट, मैथमेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिट बहुत हो सकते हैं, तो जितने इन्फिनिट है सब मिलाकर के उनका नाम दिया उसने कैंटस एब्सोल्यूट। और बाद में लास्ट उनका कंक्लूजन ये हुआ कि it is not possible to know the Cantor's absolute. Why? Because the Cantor's absolute contains the mind of the person who is wanting to know the Cantor's absolute. तो ईश्वर को इसीलिए फार लास्ट में कहते हैं the mystical process is the only process whereby you can know the mind of God. मतलब क्या है कि ध्यान के क्षणों में ही
हमको उस परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए साधना हमको करनी पड़ेगी एक्सटर्नल, बिकॉज इट इज अ मैटर नॉट टू बी एक्सपीरियंस एक्सटर्नली, इट इज अ मैटर टू बी एक्सपीरियंस इंटरनली। ये हम लोग को बताना पड़ेगा विद्यार्थियों को कि भाई आपको इसमें श्रद्धा विश्वास की बात नहीं है, आपको इसमें यू हैव टू गो एक्सपेरिमेंटली। बट आप पहले से बोल दिए हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस पानी मिलता है इसमें नहीं मानते, ऐसा नहीं। कम टू द लेबोरेटरी, आप भी प्रयोगशाला में आइए, आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, एंड देन यू बिलीव, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू गो अहेड। तो अभी आपने जो हैप्पीनेस वगैरह की बात कही थी वो हमको नहीं मिल रही, उसका कारण क्या है? बिकॉज हम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं। एक बुढ़िया थी, रो रही थी, तो किसी ने कहा अरे भाई रो क्यों रही है? बोले देखना बेटा मेरी सुई खो गई। अरे तू उसमें रोती क्या, चल मैं खोज देता हूँ। बहुत उसने भी खोजा, उसको भी नहीं मिली, फिर उसको ट्यूबलाइट हुई। अच्छा बुढ़िया ये सुई खोई थी कहाँ? बेटा वो भीतर में कमरे में खोई थी। अरे और तू बरामदे में देख रही है? बेटा उधर अंधेरा है इधर उजाला है इसलिए यहाँ देख रही हूँ। तुम हजारों साल तक देखोगे नहीं मिलेगी, सुई है उधर भीतर के कमरे में और देख रहे हो बरामदे में। ये हम सब की कहानी है, हम सब की कहानी है। हम चाहते हैं हैप्पीनेस एंड पीस, ढूंढ रहे हैं लेटेस्ट मॉडल कार में, लेटेस्ट मॉडल मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल मकान में, परंतु शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये उपस्थिति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हमारे भीतर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए कबीर कहते हैं मोको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में अभी तुमको मिल जाऊंगा, पर तुम गलत जगह मत ढूंढो, मैं तुम्हारे भीतर में ही हूं। और इसलिए ये कबीर जी की जो बात है वो उसकी बात पर ही जो एक दूसरा उदाहरण देते हैं, ना भी कमल में है कस्तूरी वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु ने ऐसे ही ढूंढे जैसे फिरे पशु बनकारे। वो कस्तूरी मृग पाया जाने वाले में वो जाता है कहीं से उसको कस्तूरी की सुगंध आ रही है, पर बहुत दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है। बाद में पता लगता है कस्तूरी तो उसके खुद के पेट में थी। ना भी कमल में है कस्तूरी वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ढूंढे जैसे फिरे पशु बनकारे। इसलिए ये शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हमारे भीतर में है, वहीं से हमको सुख और शांति मिलेगी। तो स्वामी जी अगर हम प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ज्यादातर लोग असंतुष्ट क्यों हैं अपने जीवन में? बहुत कष्टदायक जीवन क्यों जीते हैं? मैंने देखा है कि जो भौतिक जरूरतें हैं उनके पूरे हो जाने के बावजूद भी, तो जो आपने बताया कि नाभि में कमल होता है और हम ढूंढ कहीं और रहे हैं, सुई अंधेरे वाले कमरे में हम ढूंढ रहे हैं उजाले वाले कमरे में, तो ये इसके रूट कॉज क्या है? आखिर क्या हो रहा है? मतलब ये लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, या बताने वालों की कमी है, या पढ़ाई में कमी है? कहाँ पे कमी आपको नजर आती है और इसका क्या निवारण हो सकता है? Only one. The whole thing is education. स्वामी विवेकानंद ने कहा था एजुकेशन alone is a panacea of all our evils. हम लोग की शिक्षा में स्वामी विवेकानंद ने कहा था व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए, पर वो शिक्षा आज दी नहीं जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी ये सब तो पढ़ाते हैं, पर कैसे उन्नत मनुष्य बने, कैसे हमारी जीवन की समस्याओं से जूझ सके, कैसे हमारे भीतर में स्ट्रेस आता है उसको कर सके। और विशेष करके पुराने जमाने में दोनों विद्या सिखाई जाती थी, अपरा विद्या परा विद्या। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराच, मुंडकोपनिषद में कहा है। दो प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती थी, एक अपरा विद्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कुछ है वो अपरा विद्या है। यहाँ तक कि वेद का ज्ञान, धर्मशास्त्रों का ज्ञान ये भी अपरा विद्या। परा विद्या मतलब अपने आप को जानना, नो थायसेल्फ, अपने आप को जानना। ये हम लोगों ने इस प्रकार की ट्रेनिंग देना बंद कर दिया, जिसके कारण we have become purely materialistic people. We have forgotten about the Atman which is within. उसकी बात को हमने भुला दिया, उसकी बात को बोलते भी नहीं है। उसके क्या कारण होता है? भौतिकवादी हो गए हम लोग, पूरे भौतिकवादी। And we are going so, and we have now become prey of consumerism. उपभोक्तावाद आ गया। अब तो नया शब्द आ गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डाल दिया, एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नहीं, एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हम लोग होता है, एफ्लुएंजा तो एफ्लुएंट लोगों को होता है। एफ्लुएंजा के कारण वहां पर अमेरिका में पेरेंट्स लोगों ने एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई है अपने बच्चों को बचाने के लिए।
This is all that is happening. Why it is happening? Because we have forgotten the roots of our Indian spiritual culture. जो हमारी नींव थी, वो नींव को हमने निकाल दिया. इसके कारण हम लोग वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन का ब्लाइंड इमिटेशन किया. स्वामी विवेकानंद कहते थे वी मस्ट हैव द बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द वेस्ट. हम लोगों ने क्या किया कि वर्स्ट ऑफ द वेस्ट और वर्स्ट ऑफ द ईस्ट को दोनों को मिला करके कर रहे हैं. तो हमको बेस्ट ऑफ द वेस्ट, बेस्ट ऑफ द ईस्ट. गांधी जी ने कहा था आई कीप द डोर्स एंड विंडोज ऑफ माई माइंड ओपन बट आई रिफ्यूज टू बी ब्लोन ऑफ. हम लोग क्या गए, बह गए. पाश्चात्य संस्कृति में अच्छी बातें हमको अवश्य लेना चाहिए. We have to take everything from everywhere, but we have to be very careful not to have blind imitation of Western materialistic culture. ये हमारे शिक्षा में भी नहीं आई थी, हमारे समाज में आ गई, कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी हो गई. इसके कारण आज हमारे युवक लोग ये दिशा भ्रंत हो गए. उनको दिशा नहीं मिल रही. They have lost their direction. They have got tremendous energy, tremendous power, tremendous intelligence, very wonderful intelligence, but no direction. The car is going full speed, but they don't know where to go. स्वामी जी, ये जो भौतिक है, इसके जो दुष्परिणाम है, ये बात हम समझ सकते हैं. कि इसके साथ जो आप जैसे सेंटर चल रहे हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स हैं, हर सोसाइटी में, हर जगह पे, और उन लोगों ने भी बहुत काम किया. आप किसी भी शहर में चले जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गाइड करते हैं, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको एक सच्चा जीवन कैसे जीना है, हमें कैसे भौतिकवादी भी रहना. जैसा आपने बताया कि हमें ईस्ट और वेस्ट का एक अमलगमेशन करना है, एक संगम करना है, जिससे हम कुछ वहां की चीजें और कुछ यहाँ की चीजें, क्योंकि हम स्टैग्नेट तो नहीं रह सकते. जैसे पहले थे वैसे हम आज नहीं रह सकते. चीजें बदली हैं, परिवेश बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है. तो जो ये आप जैसे लोग, आपके बारे में अगर हम बात करें, हाईली क्वालिफाइड एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से इंजीनियर थे और आपने वर्ड को रिनाउंस कर दिया और आपने ये एक जो पाथ चुना जीवन का, अपने लिए हैप्पीनेस और दूसरों को हैप्पीनेस देने का. तो ये जो आपके सेंटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स, बहुत ही क्रेडिबल सेंटर्स हैं, और बहुत सारे और भी हैं जिनके बारे में हम नहीं कहना चाहते बात. इनका कितना रोल है और कितना इफेक्टिव हो पाए हैं अभी आज के टाइम में? कुछ असर कर पा रहे हैं? जैसे आप बता रहे हो कि कैरेक्टर बिल्डिंग का काम नहीं हो पा रहा है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग में आप लोगों की जो भूमिका है आपके जैसे सेंटर्स की, कितनी प्रभावी है और कितनी रीच है? रीच कम हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ, इसमें क्या है, वी आर ए ड्रॉप इन द ओशन. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर, सपोजिंग हमारे यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं हर साल. वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स. ईयर में हम लोग के 8-10 हजार स्टूडेंट्स होते हैं और एनुअल कॉम्पिटिशन में 10,000 स्टूडेंट आते हैं. सो इट देन टोटली इट कम्स टू 20 to 30,000 हमारा रीच है. अभी ये यूट्यूब वगैरह के कारण भी थोड़ा रीच बढ़ा होगा. बट दैट इज नॉट एक्चुअल, दैट इज वर्चुअल, वॉट एवर इट इज. फिर भी यू कैन इमेजिन अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी है. आप सोचिए, 50 crores ऑफ यूथ आर देयर नीडिंग डायरेक्शन, वेयर एज जो संस्थाएं हैं दे आर मच लेस कंपेयर टू दैट. और उसमें भी देयर आर वेरियस अदर इफ्स एंड बट्स. all are not going towards that direction. some संस्थाएं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केवल रिलीजन तक ही सीमित है. इस प्रकार के एजुकेशन वगैरह में, स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के वगैरह के मामले में इतना आगे नहीं बढ़ रही है. और they have got their own reasons. हो सकता है. तो इसलिए when we comes to that, it boils down that we will require many such institutions like Ramakrishna Mission. Already there are few, but this has to be multiplied by many times in order to reach a particular thing. And another thing, when the education itself is being transformed, as we are now contemplating about the new education policy, स्कूल कॉलेज में ही यदि पढ़ाया जाए. अभी तो क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर सेक्शन 30 we cannot preach our scriptures. Only minorities, they can preach their scriptures, but we cannot preach. So that is also another block, that something has to be done with the constitution also. बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कुछ बातें अभी उन्होंने ली है कि जहां पर कैरेक्टर बिल्डिंग और ये स्पिरिचुअल वैल्यूज की बातें कही है, वैल्यू एजुकेशन की बातें कुछ कही है. बट इफ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, आई थिंक देयर विल बी अ चेंज. ग्रेजुअली देयर विल बी चेंज. Coming back to the same character building kind of education, strength of mental strength, do you think the situation like this which we are going through as of now, pandemics, if we are strong character, if we have a strong character, will it be much easier to manage these kind of situations? And if I can add,
people like you and those who have guidance and guidelines and leading lights like you and teachings of your kind of uh, enlightened people, are they able to do it in a much better way than the normal people? Because this pandemic has definitely hurt the people mentally, physically, and financially. Some people have just coped up with the thing and survived. Some people are really in trouble, big trouble. So this character building, does it help always at Sure. everywhere? Now, what do we mean by character building? What do we mean by man making? That means strong body, strong mind, strong intellect, and strong moral and spiritual character. So it is not only physical development of the personality, not only mental development of the personality, not only intellectual development of the personality, but also moral and spiritual development of the personality. When that comes, when you got spiritual development, when you got spiritual strength, you will be able to face the problem squarely. I'll give an example. When Swami Vivekananda was going, जब स्वामी विवेकानंद जा रहे थे अमेरिका जाने के पहले उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया, तब वाराणसी में गए थे। वाराणसी में माँ दुर्गा का मंदिर का दर्शन करके वो निकल रहे थे, तब अचानक कुछ बंदर लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया, बड़े बड़े बंदर जिसको हनुमान कहते हैं, काले मुंह वाले। अब स्वामी जी तो डर गए, स्वामी जी भगे, अब बंदर पीछे भग रहे हैं, स्वामी जी आगे भग रहे हैं। अब तो भगते गए, अब एक तरफ तालाब था, दूसरी तरफ दीवार थी, तो करते कि आगे आगे दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते थक गए, अभी क्या करें। तब तक में उन्होंने एक वृद्ध सन्यासी का आवाज सुना, ए डरो मत, बंदर का सामना करो। जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो रुक गए। रुक करके उन्होंने पीछे देखा, पीछे देख करके अपनी लाठी ऐसे चलाई, सब बंदर भग गए। बाद में अमेरिका के उन्होंने लेक्चर में कहा था, दैट डे आई लर्नड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ माय लाइफ। व्हाट इज दैट? फेस द मंकीज, फेस द ब्रूट्स, फेस द डिफिकल्टीज स्क्वायरली। परिस्थितियां जब बहुत डिफिकल्ट होती है, यदि आप घबरा जाएंगे तो परिस्थिति आप पर हावी हो जाएगी, परंतु यदि आप बहादुरी पूर्वक मुकाबला करेंगे, ये सब जितनी तकलीफ, जितनी डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलियां हैं, ये भग जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा लेसन स्वामी जी ने हमको सिखाया। तो जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड पीपल रहते हैं, दोनों के सामने ऐसा नहीं कि इनके पास प्रॉब्लम नहीं आते। आप पैंडेमिक हम लोग को भी फेस करना पड़ता है, बट वी आर एबल टू फेस स्क्वायरली मोर बिकॉज वी हैव गॉट दैट इंटरनल स्ट्रेंथ, बिकॉज वी हैव गॉट बीन टॉट दैट लेसन, फेस द प्रॉब्लम्स बोल्डली। ये राक्षस आया है, ये कोरोना वायरस का, तो क्या हो गया? डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जितना हो सकता है सावधानी रखो, जितना हो सकता है ट्राई टू कीप द सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग, अपना सैनिटाइजेशन करो, अलग रखो, अलग रहो, ट्राई टू एसोसिएट। अभी हम लोगों ने सब, तो हमारा मंदिर में सब बंद है, ओनली दर्शन 5 मिनट के लिए आकर के, बाकी सब बंद एज ए प्रिकॉशन। और जितना सत्संग हमारे ई सत्संग चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सत्संग, ऑनलाइन सत्संग चल रहा है रोज, और संध्या आरती भी हमारी होती है, वो भी ऑनलाइन चलती है। सो दिस इज द वे वी आर ट्राइंग टू टैकल द प्रॉब्लम। वी आर नॉट अफ्रेड। सिचुएशन आज है, कल नहीं रहेगी। दिस टू शैल पास। अब्राहम लिंकन एक बोर्ड अपने सामने रखते थे, उसमें लिखा था दिस टू शैल पास। तो किसी ने पूछा, भाई ये बोर्ड क्यों रखा? बोले कभी कभी डिफिकल्टीज बहुत आती है, तो मैं देखता हूं दिस टू शैल पास। और फिर कभी कभी बहुत सक्सेस मिलती है तो थोड़ा अहंकार आता है, तो फिर वो देखता हूं दिस टू शैल पास, तो फिर मेरा अहंकार भी कम हो जाता है। तो दिस हेल्प्स मी। एवरी सिचुएशन इज इन फ्लक्स। ये चेंजिंग सिचुएशन है। There is only thing permanent, what is there in the world is change. Change is permanent. वो रहता, परिवर्तन यही एक परमानेंट चीज है। इसलिए ये भी चला जाएगा। आज पैंडेमिक है, वो भी चला जाएगा। तब तक क्या करें? डटे रहें, बहादुरी पर उसका सामना करें। फेस द ब्रूट्स, फेस द डेमन ऑफ दिस कोरोना वायरस स्क्वायरली। दिस इज द what we have to see. Thank you, Swamiji. I think this is a very strong message to all the audience that how we can manage these kind of difficult situations. I have a question from audience. She's from your city only, Rajkot. Vijaya Lakshmi, Dr. Vijaya Lakshmi. She has requested for many questions. I'll read one. Request you to answer, please. The universe is always expanding. What is the representation of the universe and cosmology in Vedanta, Swamiji? Yeah. According to cosmology in Vedanta, this universe is not created once. It is
it is revolving. सृष्टि स्थिति प्रलय ये बार बार होते रहते हैं. There was never a time when it was created, there will never be a time when it will not be there. ये ब्रह्म और माया ये पैरेलल है, सृष्टि और ब्रह्म ये पैरेलल है अकॉर्डिंग टू वेदांता. तो वेदांता फिलोसॉफी के अंदर देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रिएशन. द वर्ड दैट इज यूज्ड इन वेदांता इज प्रोजेक्शन. प्रोजेक्ट होता है, बाद में फिर से मैनिफेस्ट होता है, फिर अनमैनिफेस्ट स्थिति में आता है, फिर मैनिफेस्ट होता है. इट इज नॉट क्रिएटेड. Something cannot be created out of nothing. This is what the modern science says, and the Vedantic theories are very modern, very scientific. What they are saying, something cannot come out of nothing. There's something, but it was in an involved state. Now it is evolved. Again, it will go to involution. तो ये सृष्टि स्थिति प्रलय इस स्थिति में से पार होता रहता है. सृष्टि का एक क्रम चलता रहता है, बट यह जो प्रोजेक्शन होता है क्रिएशन नहीं होता है. दैट इज वेदांतिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन. स्वामी जी, एक और हमारे कुश कुमार पटेल जी हैं, उनका एक सवाल है, रामकृष्ण परमहंस जी को विवेकानंद जी क्यों ज्यादा पसंद थे? उनके और बहुत सारे चेले थे, तो विवेकानंद जी क्यों पसंद थे? बहुत अच्छा प्रश्न है. तो श्री रामकृष्ण देव ने उसका उत्तर हमको श्री रामकृष्ण देव के पास ही मिल जाता है. उन्होंने कहा कि एक बार मेरा मन था वो समाधि अवस्था में चला गया और इतना उच्च अवस्था में चला गया कि ये जो सारा विश्व है उसके ब्रह्मांड के ऊपर चला गया. उस ब्रह्मांड के ऊपर में मैंने देखा 7 ऋषि गहरे ध्यान में मग्न हैं, और उसमें से एक तभी तक में क्या हुआ कि आसपास का जो वातावरण था उसमें से वो सच्चिदानंद रूपी जो मैटर था उसमें से एक शिशु प्रकट हो गया, और वो शिशु एक ऋषि मुनि के पास जाकर के इशारे से बोल रहा है, मैं वहां नीचे पृथ्वी में जा रहा हूं, तुमको आना पड़ेगा. और वो ऋषि ने कुछ बोले नहीं पर मुस्कुराए, मतलब उन्होंने हामी भर दी. बाद में बताया ये ऋषि कौन है? बोले देखो ये नरेन है ना, ये सप्तर्षि में से एक ऋषि है. और फिर तब लोगों ने पूछा पर वो बच्चा कौन है, ये तो बताइए. तब उन्होंने स्वीकार किया वही वो शिशु है. मानो रामकृष्ण परमहंस सप्तर्षि मंडल में से नर ऋषि नाम के नर ऋषि को जगत के कल्याण के लिए लाए, और इसलिए उनका नाम नरेंद्र हुआ. और ये नरेंद्र ही बाद में स्वामी विवेकानंद बने. उस समय पहले नरेंद्र थे. तो स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने कहते थे कि बाद किसी में यदि 16 गुण है तो स्वामी विवेकानंद में 1000 गुण है. तब तक के जमाने में केशव चंद्र सेन वॉज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ इंडिया. कि क्वीन विक्टोरिया उसका लेक्चर सुनने जाती थी. एक बार केशव चंद्र सेन थे, उसके सामने ही बोला नरेंद्र के बारे में कहा, ही वॉज ए स्टूडेंट, कि केशव में मैं देख रहा हूं बहुत सारा प्रादुर्भाव हुआ है बहुत शक्तियों का, पर केशव में जितनी शक्तियां उसे 1000 गुना शक्तियां मैं नरेंद्र में देख रहा हूं पोटेंशियली. और बाद में प्रमाणित हो. उस समय तो नरेंद्र नाथ ने उनको बहुत डांटा, अरे मैं एक विद्यार्थी हूँ, कहाँ केशव चंद्र इतने बड़े व्यक्ति, उसके साथ आप मेरी तुलना करते हैं. बट श्री रामकृष्ण ने कहा अरे तू क्या समझता है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को जगदम्बा मेरे मुंह से बुला रही है कि ये नरेंद्र में इस प्रकार की क्वालिटीज है. तो ही वॉज ए डिवाइन पर्सनैलिटी हु हैड कम टू द वर्ल्ड फॉर डूइंग गुड टू ह्यूमैनिटी. और ये एक अवतार लीला, जैसे जो राम थे जो कृष्ण थे आते हैं रामकृष्ण के रूप में, और इस प्रकार से युग प्रवर्तन करने के लिए आते हैं. और उनके मुख्य सहायक के रूप में ये सप्तर्षि मंडल से स्वामी विवेकानंद आते हैं. तो उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप था, ए स्पेशल रिलेशनशिप वाज देयर, एंड दैट इज व्हाई ही लव्ड नरेन मोर देन द अदर 16 डिसाइपल्स. और भी 15 और भी थे शिष्य, उनको भी श्री रामकृष्ण बहुत प्यार करते थे. या राखाल को स्वामी ब्रह्मानंद को कहते थे, ही इज माय स्पिरिचुअल सन, मानस पुत्र कहते थे. परंतु नरेंद्र के साथ उनका एक अलग रिलेशनशिप था बिकॉज ऑफ दिस मिस्टिकल विजन दैट श्री रामकृष्ण हैड. स्वामी जी, मेरे पास आई हैव क्वेश्चंस. मेनी पीपल रिक्वेस्टेड मी, मेनी पीपल टोल्ड मी टू आस्क दिस क्वेश्चन. हाउ पीपल लाइक यू, दोज हु आर रियली एनलाइटेंड सिद्ध पुरुष, वो लोग जो ऐसे विपदाएं होती हैं, जो कैलामिटीज होती हैं, हाउ यू मैनेज, हाउ पीपल लाइक यू मैनेज दोज काइंड ऑफ कैलामिटीज, एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस यू गिव टू द पीपल अराउंड यू, एंड पर्सनली हाउ यू मैनेज द थिंग्स.
हाँ, उसमें ऐसा होता है कि हम लोग यही समझ कर करते हैं कि एक्सटर्नल सिचुएशन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर इंटरनल सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल है. सो वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्व्स. तो जो गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी आउटसाइड, वही हम लोग को करना है. सारा रास्ता, पूरा रास्ते में बहुत गर्म है, रास्ता गर्मी है, तो पूरे रास्ते को चमड़े से मढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, पर हम लोग जूते पहन सकते हैं चमड़े के, और इसके ऊपर चल करके अपना कार्य निपटा सकते हैं. सो वी मे नॉट बी एबल टू चेंज द होल वर्ल्ड, वी मे नॉट बी एबल टू ओवरकम. अभी वैक्सीनेशन वगैरह तो हमारे हाथ में नहीं है. जब तक वैक्सीनेशन आएगा तब तक जो कुछ एक्सटर्नली हो सकता है वो करेंगे. तो हमारा इक्वेशन ये रहता है, भगवत गीता का जो संदेश है उसी को हम लोग पालन करते हैं. भगवत गीता का संदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि. हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है. तू तेरा कर्म कर, मैं मेरा कर्म करूंगा, मेरा कर्म है फल देना. और ये कर्म का सिद्धांत है, ये अक्षुण है. The law of karma is supreme in the mental world, just as law of gravitation is supreme in the physical world. तो उस कर्मों के सिद्धांत को मान करके जो कुछ भी हो रहा है हमारे प्रारब्ध के कारण हो रहा है, तो उसको हम लोग को सहन करना पड़ेगा, उसको हम लोग फाइट करना पड़ेगा टू द बेस्ट पॉसिबल. एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू abide by the rules of the divinity. तो उसका मतलब क्या है? Do your best and leave the rest. This is the golden formula. Anytime if you are having any tension, anytime if you are having tension about your result of the examination, result of any other thing, anytime if you are angry, if you are not able to control anything, just remember this formula: do your best and leave the rest. LEAV. जी, हमारे साथ श्रद्धा जी हैं, अपने टीम मेंबर हैं. बहुत ही इन्होंने आपसे क्वेश्चन, इनके पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है. श्रद्धा जी, आप पूछिए प्लीज. थैंक यू सर. स्वामी जी, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका. प्रणाम, सादर प्रणाम. स्वामी जी, ये जानना चाहती हूँ आपसे, आप यू आर द करेक्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन. there are a lot of theories कि हमारे पास हमारे मृत्यु के पश्चात ये होता है, और reincarnation की theories भी हैं, काफी सारी ऐसी. there are lots of notions going on around us. कई बार कई लोगों को फील भी होता है, कई बार हमें ऐसा होता है किसी से मिलने के बाद हमें लगता है कि अरे हम तो इन्हें बहुत बरसों से जानते हैं. तो आप मुझे बताएं, मैं बड़ी अज्ञानी हूँ इस मामले में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, what happens to life after death? Very, cliche question still. Very nice question. आप इस किताब को पढ़िए, लाइफ आफ्टर लाइफ, ब्यूटीफुल बुक by Raymond Moody, डॉक्टर रेमंड मूडी. वेरी ब्यूटीफुल बुक. साइकियाट्रिस्ट है, बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट. इन्होंने क्या किया है कि ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल उन्होंने कलेक्ट किए जो कि क्लिनिकल डेथ जिनकी हो गई थी, क्लिनिकल डेथ, दे वर डिक्लेयर्ड डेड. वो उसके बाद में उनको किस प्रकार, सभी का सिमिलर एक्सपीरियंस है. सभी लोग डीप टनल में से जाते हैं, कोई लाइट उनको आकर के बढ़ता है, इस प्रकार के एक्सपीरियंस. फिर बाद में कैसे भी करके वो जी गए. इससे डिफरेंट थिंग. ऐसे सब केसेस का उन्होंने यहाँ पर कलेक्शन किया है. लाइफ आफ्टर लाइफ बाय डॉक्टर रेमंड मूडी. ये है. दूसरी एक डॉक्टर स्टीवंस की किताबें हैं. इनमें उन्होंने क्या किया, हजारों ऐसे एग्जाम्पल जहां से उनको मिला कि कोई लड़का बोलता है मैं पूर्व जन्म में यहाँ था, तो वहां गए, सचमुच में था क्या, ऐसा पढ़ के. इस प्रकार के हजारों उन्होंने एग्जाम्पल वहां पर कोट किए हैं, सबका नाम दिया है ये व्यक्ति. और बाद में वहां पर जाके ठीक पता पड़ा कि हाँ उसी टाइप का वो बोले मैं इस प्रकार का व्यक्ति था, तो मैं तो उसका बाप था. अब उसको बर जाकर के बोले तुम्हारा बाप तो अभी ये हो गया है, ऐसा करके. अनबिलीवेबल. बट he is a western person, he is a scientist. yes, डॉक्टर स्टीवंस ने बहुत सारे एग्जाम्पल करके. another thing मैं कहता हूं कि कोई किसी लोग, कितने लोग बोलते हैं अरे यदि पुनर्जन्म है तो आपको पुराने जन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती. तो स्वामी विवेकानंद पूछा करते थे, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र जब 6 महीने की थी तब तुम क्या करते थे, क्या खाते थे. बोले याद नहीं है. तो इसका मतलब तुम नहीं थे. नहीं, ऐसा कैसे कहते हैं. तो कैसा, व्हाट इज द प्रूफ. नहीं, मेरे माँ बाप ने कहा है कि मेरा जन्म इस तारीख को, तुझे याद है तुम कैसा जन्म किया था, कैसे निकला था तू. मेरे को याद नहीं, मेरे माँ बाप ने कहा, तो तूने मान लिया. हाँ, मानना पड़ा. तो यही तुम मान लो. तो बात यह है कि व्हेन बिकॉज यू डू नॉट रिमेंबर, दैट डज नॉट मीन दैट
पूर्व जन्म नहीं है। अरे इसी जन्म की बात याद नहीं है, तुम पूर्व जन्म की बात करते हो। स्मृति तो उस समय तो पूरा जो सॉफ्टवेयर पूरा बदल गया ना, सॉफ्टवेयर दूसरे हार्डवेयर में जाने के बाद तो वो बदल गया, तो कैसे होगा? तो दैट इज नॉट द थिंग। और दूसरी बात है, कभी कभी आपने देखा होगा चाइल्ड प्रोडिजी, 2.5 साल का बच्चा इतना बढ़िया तबला बजाता है, कौन सिखाया उसको? कहां से आई ये विद्या? ऐसा तो हमने खुद ने देखा है, हमारे यहाँ आते थे। हम एक छोटा बच्चा है, वो अंधा है और 3 साल 4 साल की उम्र में पूरा गीता उसको कंठस्थ है। कौन सिखाया उसको? अंधा है, कौन सिखाया? अभी हमारे आता है, उत्तम उसका नाम है, इज चाइल्ड विथ एक्सप्लेनेशन बताता है। और एक हमारे यहाँ रायपुर में मैं था, छत्तीसगढ़ में, एक आती थी लड़की, उसका नाम है कुमारी सरोज बाला। अभी तो पता नहीं, बहुत साल पहले की बात है, अभी तो बड़ी हो गई होगी शादी भी हो गई होगी। वो 6-7 साल की बच्ची, उसको हमारे साथ ऐसे मजाक करती थी, मुझे चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। ये छोटी सी बच्ची, चॉकलेट दो, ऐसे चॉकलेट मांगती थी। तो ऐसा सब मैंने छोटी बच्ची, लाइक एनी अदर गर्ल, जहां उसके पिताजी गोद में लेकर के उसको बैठा दिए वहां पर, स्टेज में बैठा दिया, माइक दे दिया सामने, फिर वो जो प्रवचन देती थी, अरे कोई बड़े बड़े संत ऐसा प्रवचन नहीं दे सकते, ऐसे ऐसे कोट करती थी, गीता उपनिषद कोट करके सब प्रवचन देती थी। ये कहां से आया ज्ञान? उसके पिताजी कुछ नहीं जानते उसकी माँ तो एकदम ही अनपढ़ है, और वो भी बाद में सब स्टेज से उतर जाएगी, बोले मेरी चॉकलेट कहाँ गई बाद में वो फिर से ओरिंदर होगी स्टेज में बैठने के बाद एकदम। ये हमने देखा है एवरी ईयर, हर साल वो आकर के 10 दिन वो लेक्चर देती थी सरोज बाला वहां रायपुर में। और मेरा काम था भीड़ को कंट्रोल करना। इतने लोग आते थे उसको देखने के लिए, 10,000 लोग, उसको कंट्रोल करने का मेरा जिम्मेदारी थी। मैं तो सब वॉलंटियर था। एनीवे, व्हाटएवर इट इज, बट व्हाट डज इट मीन? ये सब कहां से आया? तो अभी तो साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि पुनर्जन्म है, और इसकी स्मृतियां भी कुछ लोगों को होती है, सबको नहीं आती। और हमारे शास्त्रों में ये कहा है कि योग क्रिया के द्वारा आप अपने पूर्व जन्म की, पूर्व जितने जन्म हैं उसकी स्मृति को आप प्राप्त कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। परंतु अभी ये तो उसका तो हमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों को इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चे हमने देखे, जिन लोगों ने इस प्रकार से, उनको कोई नहीं था फिर भी उन्होंने इस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया, व्हाट डज इट मीन? पूर्व जन्म का ज्ञान होगा, ये तो पक्की बात है। और अभी तो डॉक्टर लोगों ने कितनी रिसर्च की, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर स्टीवंस ने तो ऐसे सब एग्जाम्पल वहां पर दिए हुए हैं। ये जो छोटा बच्चा ऐसा बोला, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, बोले क्या तुम्हें, बोले मेरा जन्म तो वहां अलीगढ़ में, वहां तो मैं उस समय था, ऐसा सब था। वो सब जाकर के देखा, ठीक वैसा था, सब मिल गया। So that is why now the modern science is also coming to this thing that yes, there is something called the theory of reincarnation is okay. स्वामी जी, I asked this question to you because मेरी बिटिया है। स्वामी जी, मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सर एक मिनट। जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए, श्रद्धा जी कंटिन्यू करिए। बस एक छोटा सा क्वेश्चन। स्वामी जी, मेरी बिटिया 11 साल की है। जब से वो 1.5 महीने की थी, जब भी कोई सिलेंडर वाला गैस सिलेंडर सप्लाई करने आता था तो वो चीखने लगती थी, और ये प्रक्रिया 3-4 साल तक चली। सिलेंडर की आवाज भी सुनती थी ना, गैस चेंज करते थे तो वो एकदम नीली पड़ जाती थी। तो आज जब आप मुझे वो दोनों एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, तो मुझे एकदम आंखों के सामने वो 11 साल पुराने किस्से एकदम आगे आ रहे हैं। तो आई नाउ गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। ओके बहुत अच्छा। Thank you very much, Swami ji. We have another audience, Dr. Vijay Lakshmi from Rajkot itself. She has a question for you, sir. Yes, yeah, and you can ask. Namaste, Swamiji. Like, I just wanted to ask, like, what is the essence of life, and where does our search for truth end? Like, most of the times, the search is always open-ended, like with no answers itself. And it is always complex. So, like, the most complex question that troubles me a lot is like the answer to the question, who am I? So I just want to ask you regarding this, Swamiji. Very good. This is the question that has been answered in our scriptures, particularly the Upanishads. You know, this question has already been answered. Who am I? Am I this body?
No, sometimes say, my body is paining. That means I am not the body. So am I the mind? No, my mind is not working today. So I am not the mind. I am different from mind. Then am I the brain? No, my brain is not working today. So I am not the brain. Then am I the ego? No, no, I am very egoistic. I will tell you what to do. So I am not ego. Then who am I? I am beyond this body, mind, and intellect and all that. What is that? Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. I am birthless, deathless, ever pure, ever blissful Atman. This is the reality that has been preached in our Upanishads. When Alexander the Great, when he came to India, he was told by Aristotle, his guru, when you are going to India, please bring a good gift for us. What is the gift? You say, everything is available in any other country, but in India, India produces the best of the saints. So bring one good saint for our country. So he was in search of a good saint. Now, while he was crossing a forest, he saw a person naked, without any clothes, Digambar, sitting on a rock, and completely full of immersed in meditation. And he was so happy to see him. And then he stopped for some time. Then afterwards, when he opened his eyes, he started talking to him. And what mine of knowledge that was. And Alexander had philosophical bent of mind. He wanted to know what is death, this and that, what is the reality. In spite of being that time he was the Alexander the Great, who had conquered the whole world. That world conqueror emperor was also interested in philosophy. And he started philosophical questions, and he got beautiful replies. And he was so much amazed and so much impressed. He said, "Now you must come with me to my country. I'll take you, and I'll build a beautiful palace for you. I'll give you nice food, nice clothes, everything." And that Mahatma started laughing. "I don't care for your food and this and that, and I don't need your palace. I live under this tree. This tree is giving me beautiful fruits. This river is giving me beautiful water, and that is enough for me. And I don't need clothes. The sky is my clothes, and I'm very happy here. Why should I come to you? No. I have promised my guru I'll bring one saint, and I'm impressed by you. You must come with me. I will not come. You must come with me. I will not come." Now, Alexander the Great, he was so angry. He was so angry. Here is the first person. On his face, he's telling, "I will not obey you." He had not habituated to listen to this no. And so he became so much agitated and so much annoyed. He just took out the sword. And when Alexander's sword came, he did not have to use it. The other person would faint then and there. But when he drew out the sword, "And I will kill you," at that time, that Mahatma started laughing loudly. "You fool, you do not know, your sword cannot pierce me, the fire cannot burn me, the water cannot melt me, they cannot dry me. I am the birthless, deathless, ever pure, ever blissful Atman. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam kledyantyaapo, na shoshati marutah, achedvayam, adayoyam, akledyo ashosh evacha, nitya sarvagata salur, achaloyam sanatana. I am the birthless, deathless, ever pure, ever blissful Atman." And the reverse thing happened. The Alexander the Great, he had never seen a person laughing loudly against his sword, and the sword fell down from him. And then the saint said, "You fool, you want me to take me to your country? I can see through my third eye. You are not going to reach your country." And the history says Alexander could not reach his country. On the way, he had a very peculiar type of fever, and he died. Before death, he called his general and said, "I have my last wish. Please fulfill my last wish. Surely we will fulfill our last wish." What is the last wish? Last wish is that when you put me to the grave, put my hands dangling out of the grave. Surely we will do that. Why this peculiar request? He said, "I conquered the whole world. So many elephants, so many horses, so many kingdoms, so much of land, so much ornament, so much gold, everything I have got. But I am helpless before death. The death has come. I wanted to meet my mother." He was very much attached to his mother. "I wanted to see my mother, but I can't see. I have been overpowered by this death, and I am weeping." But here is another person who has conquered death. And at the point of death, he is laughing. He is laughing. He has conquered death. So let the whole world receive the message that
Alexander came, conquered the whole world, but he is going empty-handed. Not a single elephant is going with me. Not a single horse is going with me. Not a single ornament is going with me. I am going helpless. Let the world know Alexander came, conquered the whole world, and is going empty-handed. And this is what is the fate of each and every human being. You may be millionaire, you may be billionaire, you might have achieved so many gold medals, you might have conquered so many, but ultimately you have to go empty-handed. Ultimately you have to go empty. This is the truth. Nobody can deny it. Death is certain. The most certain thing is the death. Most uncertain thing in life is the time of death. This is the reality. I think This is the this reality. is a real good answer where we can really find the essence of life, essence of who So I am. we Uh, should not be afraid. Take the Vedant philosophy. Ultimately, our true nature is Chidanand Rupa Shivoham Shivoham. Try to meditate on that. Try to know that reality. How to know the reality? Practicing 4 yogas. Swami Vivekananda says each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. Ultimate thing is manifesting the divinity. If you want infinite happiness, infinite bliss, eternal life, the only alternative is manifest the divinity. How? By practicing 4 yogas: Raj Yoga, Bhakti Yoga, Gyan Yoga, and Karma Yoga. And each and every human being can do it, and it's their birthright, and they must do it. And they don't have to go to forest. You don't have to give up your job. You don't have to give up your profession. Nothing. Wherever you are, just change the attitude of life and practice these 4 yogas and achieve that infinite happiness, infinite knowledge, infinite bliss, and eternal life. This is the prerogative of each and every human being. Thank you very much. Such a beautiful answer. I think Vijay Lakshmi ji, you got your answer, I believe. Yes, sir. It was very truly inspiring. Thank you very much, Swamiji. Okay. Thank you. Yeah, thank you very much for asking the question and Yeah, coming on the you show, are in please. Rajkot. After the corona is over, then we can meet. We are now, I am not meeting anybody physically. Online, Okay. everything online. But when the Okay. corona, this corona affair is gone, then you can meet me in the ashrama. It will be pleasant. Definitely. Yeah, definitely I will meet you, Swamiji. Thank you so much. Swati ji, if you have any question, you can ask, please, before I put my final question of the show. Do you have any question to Swami ji? Unmute. I think, yes. Swati ji, please unmute. Yes. Yes, you are unmuted now. Actually, I have heard so much from Swamiji now, and it has been such a lovely and enriching session with you. And we got to learn so much with this conversation between Swamiji, Umashankar ji, Shraddha, and all the guests which we have. We learned about this how to face how your spiritual strength can help us face problems squarely. पुनर्जन्म में आपके विचार जाने, आपके अनुभव जाने हम लोगों ने. And then we know how practicing 4 yogas can help us in all the difficult scenarios. And most important, Chidanand Rupam Shivoham Shivoham. I would like to thank you, Swamiji, for being with us. And I thank you all the lovely audience for continuously supporting our efforts and for being such an important part of all the sessions of Ahmedabad International Digital Festival. I would like to thank Umashankar ji for providing such an excellent platform where we Yeah, get yeah. to I also would like intellectual- to, I would like to congratulate. I would like to congratulate him for Swami ji, continuous such sessions. Consecutive years it's going on. And I Yes. must congratulate AILF for this wonderful work that you are doing continuously on a continuous basis. I must congratulate. Swami ji, thank you very much. Swati ji, thank you very much for your kind words. I have one final question, Swami ji, for you. That is Yeah, very yeah. important for everybody. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतने टॉप क्लास का एजुकेशन करने के बाद भी आपने दुनिया के जो सांसारिक माया मोह है उसको छोड़ के सैंटहुड में आए, तो
तो आपके सपनों का संसार कैसा है, कैसा होगा भविष्य में, किस तरह का संसार देखना चाहते हो? क्योंकि आपने संसार को इतना कुछ दिया है, आप संसार से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि संसार कैसा होगा हमारे सपनों का? तो व्हाट इज द काइंड ऑफ आइडियल वर्ल्ड यू लुक फॉर योरसेल्फ? या मैं ऐसा सपना देख रहा हूं कि दुनिया के सभी लोग, irrespective of caste, creed, color, religion, nationality, will be following their own religion, their own faith, but ultimately practicing the values of life which are common in every religion, in every faith. Practicing those values, they will be good mannered people, believing in their own faith, at the same time having respect towards other faiths, and bereft of all sorts of fanaticism or all sorts of sectarianism, and with the idea of universal brotherhood embedded in their mind, with universal love, universal brotherhood, all will be living together in peace. That is my dream of the humanity tomorrow. Wonderful dream. I'm not being cynical, but when do you expect this can happen? Anytime. If you want tomorrow, it can happen. It can happen tomorrow. You see, Swami Vivekananda says, if for 3 days all the people go and pray, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukh Bhag Bhavet. With heartily, if we pray sincerely, all the people together, tomorrow it will come. Shraddha ji, do you have any questions for Swamiji, or you want to say something? सर आई जस्ट वांट टू से जितना धन्यवाद करूं आपको कम होगा स्वामी जी। आपसे बात करने के बाद एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस कर रही हूं मैं। और उमा शंकर सर से मैं कह रही थी कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा लेकिन श्रद्धा जी आप आइए, दिस सेशन यू कांट अफोर्ड टू मिस। एंड थैंक यू सो मच उमा शंकर सर फॉर एक्चुअली टेलिंग मी सो मेनी टाइम्स। स्वामी जी जितनी चीजें आपसे मैं सीख रही थी, I would try to, I have, I am promising myself that I would try to imbibe them in my life, and then I will take this further. Thank you so very much for answering and for being such a wonderful and beautiful human being. Thank you, Swamiji. Thank you. Namaskar. स्वामी जी, मैं आपको इतना जरूर अश्योर स्वामी जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए इतना जरूर अश्योर करना चाहूंगा कि मैंने आपके वक्तव्यों से, आपके बातों से बहुत कुछ सीखा है और अपने अंदर आत्मसात किया है। श्रद्धा जी बता रही करेंगे, ऐसे बहुत सारे ऑडियंसेस हैं जिन्होंने आपके सुना है या सुनेंगे, क्योंकि ये मैं अपने सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये जो वार्ता है, ये जो सेशन है, यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे और हमारे ट्विटर हैंडल पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, वो वहां जाके वापस सुन सकते हैं। बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत सारी परिवर्तन होने के इसमें इतने सारे गुण हैं। अगर आप सही में आत्मसात करना चाहेंगे तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। स्वामी जी की एक छोटी सी कहानी ने, जो हमने मछुआरे और मछली वाली कहानी थी, उसने मुझे तो बहुत ज्यादा सिखा दिया था। एक बार मैंने सुना था, और ऐसी बहुत सारी कहानियां आज सुनाया स्वामी जी ने। बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर है। इनफैक्ट विल हैव प्रोबब्ली समडे इन राजकोट आश्रम, विल गो एंड लिसन द स्टोरीज। स्वामी जी आपके हम आते हैं किसी दिन। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। Thank you. जरूर आइए। हम लोग वेबिनार करेंगे, वहां भी सेमिनार करेंगे। Thank you very much once again, everybody. Swami ji, Shraddha ji, Swami ji, all the audience. Let all be happy. Let all be happy. Thank you so much, Swamiji. Means a lot. Thank you. Thank you. धन्यवाद स्वामी जी। नमस्कार।